Hello students, today we will be starting the first chapter of our class 9th NCRT Beehive, that is the fun they had. Now before reading this chapter, we have to know some basic details of the chapter where the plot is revolving about. So the story we shall read is set in the future. That means what we are reading is something going on in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. That means probably we are not sure, but it may be that the books we know that has physically turned pages will not exist then. Now, how will children study then? The diagram below may give you some idea. So, what is the diagram? Let's see. Okay, so here we can see schools of future. We'll see that how the schools of the future will work when technology will be advanced and everything in the world will be turned upside down. So, learning through computers, like the books we are having today, the human teachers that we are having today will not exist in the future. So, first thing as we can see is learning through computers. The second thing we can see is virtual classroom. That means the classrooms we are having today where a number of students sit together and there's one teacher teaching them. These things won't be in the future. Third thing we see is a robotic teacher. That means the human teacher we are having today who is there to clear all our doubts and whatever when we as soon as we ask him or her, but that won't be such in the future. Fine. The last thing is moving e-text. Now moving e-text is the contrast of the books that we are having. In the future, there will be moving e-text that will be all collected, combined in a computer. Fine. So these will be the condition of the schools of the future. Now coming on the chapter. So here in this story there are two children, Margie and Tommy. So Margie and Tommy both have friends, and what happened is that Tommy found a book. So Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. So from this line itself we can learn that this story is presented in the future where the date is 17 May 2157. So what she wrote is that Tommy found a real book. Why she wrote it? Because it was a very important thing to her, and sometimes it is asked that what she wrote on the diary, maybe as a 1 marker or 2 marker question. तो आपको यही लिखना है कि today Tommy found a real book. तो अब वो बुक के बारे में डिस्क्राइब करती हुई कहती है कि it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मतलब मार्जी के भी दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि एक टाइम ऐसा होता था जब हम जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो स्टोरीज हम पढ़ते हैं, वो सारी पेपर पे प्रिंटेड होती थी. मतलब वो किस टाइम की बात कर रहे हैं? वो हमारे टाइम की बात कर रहे हैं, आज के टाइम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो पेपर पे प्रिंटेड होती हैं. बट उनके टाइम में क्या है? उनके टाइम में हर चीज़ ई टेक्स्ट के फॉर्म में है. आप कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं. और वो क्या डिस्क्राइब करती है? अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन जो बुक का वो करती है, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़िए. तो क्या है? दे टर्न्ड द पेजेस. ये उसके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग बात है कि दे टर्न द पेजेस, क्योंकि उनकी बुक्स क्या है, वो क्लिक करते हैं, पेजेस अपने आप टर्न होते जाते हैं, या वो कुछ टाइम के बाद ही होते हैं, एनिमेशंस एंड ऑल. तो ये इसलिए अमेज्ड है क्योंकि वो दे टर्न द पेजेस फिजिकली. और पेजेस कैसे थे? दे वर येलो एंड क्रिंकली. पीले थे और क्रिंकली का क्या है? विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स. ठीक है. And it was awfully funny to read the words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो अब मार्जी के अकॉर्डिंग नॉर्मल क्या हुआ? मतलब उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल ये हुआ कि जो टेक्स्ट हैं वो मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टिल. लेकिन उसके लिए अजीब, उसके लिए ऑकवर्ड ये हो गया कि जो टेक्स्ट है वो स्टिल है, रुके हुए हैं. हम अगर अभी भी पढ़ रहे हैं, आप अपनी बुक्स देखेंगे तो वर्ड्स आर स्टिल ऑफ कोर्स. लेकिन उनके टाइम पे क्या नॉर्मल है कि जो वर्ड्स है दे आर मूविंग. तो शी सेज दैट इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू. अब अकॉर्डिंग टू हर द वर्ड्स वर सपोज्ड टू मूव, बट क्या हो रहे हैं? वर्ड्स क्या थे? स्टिल थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर,
It had the same words on it and that it had when they read it the first time. अब इनके में क्या है, इनकी जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है तो बुक्स इनकी ई बुक्स हो गई, और ऐसी बुक्स क्या थी जिसमें एनिमेशंस थे। तो ये क्या सोच रही है कि उनकी जो बुक्स थी, मतलब पुराने टाइम की जो बुक्स थी, वो ऐसी थी कि अगर आप एक पेज को पढ़ के टर्न करो और आप वापस उस पेज पे जाओ तो तब भी लेटर्स वैसे के वैसे ही रहते थे और वही चीज़ें रहती थी जो आपने पहले पढ़ी थी। तो दीज ऑल थिंग्स आर रियली सरप्राइजिंग हर कि ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज शी हैज़ नेवर सीन अ रियल बुक। ठीक है, बट जब उसको मिली, जब टॉमी को वो बुक मिली, देन शी वॉज रियली वेरी एस्टोनिश्ड। अब आगे, Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो यहाँ पे टॉमी क्या कहता है, टॉमी अब माची का दोस्त है और वो ये कहता है कि ये बुक जो है, जो बुक उसे मिली थी, दैट वॉज अ वेस्ट। अब वेस्ट क्यों थी, क्यों? क्योंकि एक बार हमने पढ़ ली तो उस बुक में वही सारी चीज़ें हैं जो पहले थी, तो देयर इज़ नथिंग न्यू फॉर हिम टू रीड। तो यही वो कह रहा है कि वो बुक वेस्ट होती है एंड यू जस्ट थ्रो इट अवे। आर टेलीविजन स्क्रीन, जो उनकी टेलीविजन स्क्रीन थी उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स थी एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडेंट थ्रो इट अवे। और वो बताता है कि जो उसकी ई बुक्स थी, जो उसके कंप्यूटर पे ई बुक्स थी, वो इतनी सारी है कि आप उसे पढ़ के फेंकोगे नहीं, क्योंकि एक आपने पढ़ ली, नाउ यू कैन मूव ऑन टू अनदर, तो आपको पहले को फेंकनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये जो बुक्स होती थी, जो ओल्ड टाइम्स में होती थी, वहाँ पे क्या होता था, एक बार आपने बुक पढ़ ली तो आपको वो हटानी पड़ती थी। तो मार्ची ने क्या कहा, सेम विथ माइंड। तो अब मार्ची कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब मार्ची क्या थी, वो 11 थी और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितने टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का था। ठीक है, तो शी सेड, कौन, मार्जी क्या कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब उसको ऐसा, वो ऐसा पूछती है इन अ वे ऑफ क्यूरोसिटी कि उसे कहाँ मिली। तो टॉमी बताता है कि इन माई हाउस, मतलब टॉमी के घर पे वो लोग रहते हैं और टॉमी अपने एटिक की तरफ, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। मतलब एटिक क्या होता है, एटिक इज़ अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। मतलब वो एक स्टोर रूम की तरह ही होता है, बट इट इज़ अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। तो वो बताता है कि उसे अपने घर में कहाँ मिली, एटिक में मिली। तो जब मार्जी फिर पूछती कि अब ये जो बुक मिली है ये किस बारे में है, तो टॉमी क्या बताता है कि ये स्कूल के बारे में है। अब मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्जी जो थी, शी हेटेड स्कूल अलॉट, उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनके टाइम में जो भी रूटीन फॉलो हो रहा था वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो इसीलिए मार्जी को स्कूल्स बिल्कुल नहीं पसंद थे। सो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। ऐसा क्यों? पहले तो उसे स्कूल पसंद ही नहीं थे पहली बात, लेकिन अब और नहीं पसंद थे। क्यों नहीं पसंद थे? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो क्या होता है, मैकेनिकल टीचर मतलब हमारे जो साथ में जो हमारा ह्यूमन टीचर होता है, उसकी जगह पे इनका क्या होता है, मैकेनिकल टीचर होता है। तो वो क्या कर रहा था, ही हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और ये क्या कर रही थी, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल, कब तक, व्हेन हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मतलब कि काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को भेजा गया, काउंटी इंस्पेक्टर। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या था, हम ये भी आगे पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा गया देखने के लिए कि आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि मार्जी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स। नाउ काउंटी इंस्पेक्टर क्या था, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब ये डिस्क्रिप्शन भी पूछा जा सकता है, हु वाज काउंटी इंस्पेक्टर। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड विथ टाइल्स एंड वायर्स। मतलब उसके पास ये सब, जैसे हम इलेक्ट्रिशियंस देखते हैं उनके पास कितना कुछ सामान होता है, वायर्स वगैरह, टाइल्स, टूल्स, वैसे ही उसके पास भी थी। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart। तो वो टीचर को अपने साथ ले गया to know what's the problem with it। अब मार्ची को क्या लगा था कि he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked।
तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि मार्जी को लगा था कि काउंटी इंस्पेक्टर को तो पता ही नहीं होगा कि क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ऑन दी अदर हैंड 1 ही घंटे के बाद उसने जो मैकेनिकल टीचर था उसको ठीक कर दिया। एंड वो बड़ा सा ब्लैक अगली, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, तो वो वापस ठीक ठाक बन के आ गया। बट दिस वॉजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था कि काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे बना दिया। बुरा क्या था? द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put homeworks and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो जैसे अभी भी बच्चों को होमवर्क करना पसंद नहीं है, वैसे ही मार्जी को भी होमवर्क करना नहीं पसंद था, और उसे क्या करना पड़ता था, उस होमवर्क को पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड में कैसे लिखते थे, वो जब 6 साल की थी तभी उसे सिखा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे तो मैकेनिकल टीचर्स ही थे, तो इसलिए पंच कोड उसे सिखा दिया गया था। एंड जब वो लिख लेती थी तो वो एक स्लॉट बना होता था, स्लॉट वॉज अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजिशन, तो वहाँ पे उसको डालना होता था एक गिवन टाइम में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स कैलकुलेट कर देता था इन नो टाइम, मतलब कि बिना समय गंवाए, बिना कोई समय लिए, बहुत जल्दी से। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, तो इंस्पेक्टर ने जब ख़त्म कर लिया अपना काम तो वो मुस्कुराया और उसने मार्जी के हेड को पैट किया मतलब थपथपाना। अब उसकी माँ को उसने क्या बोला कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब ये मार्जी की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसे क्या लगता है कि जो जोग्राफी सेक्टर था जिसमें मार्जी बहुत बुरी परफॉर्मेंस कर रही थी, वो थोड़ा सा वो गियर अप हो गया था। गियर की मीनिंग यहाँ पे क्या दी है, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया था, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड का नहीं था, मार्जी ने सब कुछ नहीं पढ़ा था, तो इसलिए शी वॉज डूइंग worse. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. तो वो क्या बताता है कि तो मैंने क्या कर दिया, उसको स्लो कर दिया टू एन एवरेज 10-year लेवल, और बाकी जो इसका ओवरऑल पैटर्न है प्रोग्रेस का वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक। एंड द पैडेड मार्जीज हेड अगेन। अब मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी बहुत ही वो डिसअपॉइंटेड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसे क्या लगा था कि वो जो टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर था, वो उसे ले जाएंगे, मतलब नियरली 1 मंथ के लिए, क्योंकि जब टॉमी के टीचर के साथ ऐसा हुआ था, जब उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, तो ये काउंटी इंस्पेक्टर उसको 1 महीने के लिए लेके चला गया था, तो ऑफकोर्स तब तक तो पढ़ाई की नहीं होगी उसने, तो मार्जी को भी ये लगा था कि ये ख़राब हो गया, तो अब 1 महीने के लिए इसके भी मैकेनिकल टीचर को लेके चले जाएंगे काउंटी इंस्पेक्टर, लेकिन वो नहीं लेके गए और 1 ही घंटे में उन्होंने ठीक कर दिया। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि ऐसा क्या है स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है कोई, ठीक। टॉमी लुकड एट हर विथ अ वेरी सुपीरियर आइज, मतलब क्योंकि उसको बुक मिली थी तो ही वॉज फीलिंग वेरी हाईली ऑफ हिमसेल्फ, तो टॉमी ने उसकी तरफ देखा विथ वेरी सुपीरियर आइज, और क्या बताया, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो उसने ये बताया कि हमारे टाइप का स्कूल नहीं है जो हमारे पास था, जो हम मैकेनिकल टीचर ई बुक्स और टेली बुक्स के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल जो हंड्रेड्स ईयर्स अगो पहले था। ही एडेड लोफ्टली, लोफ्टली भी का भी यही मतलब दिया है, इन अ सुपीरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज अगो, मतलब सैकड़ों सालों पहले। अब मार्जी वॉज हर्ट, अब मार्जी को बुरा लग गया। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। अब ये क्या कहती है, मार्जी क्या कहती है कि अब उसे तो पता नहीं था कि वहाँ पे बुक्स कैसी होती थी, तो जो बुक टॉमी पढ़ रहा था, जो उसे मिली थी, वो उसको मतलब देखती है और कहती है कि एनी वे दे हैड अ टीचर, उनके पास क्या था, टीचर। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी क्या कहता है कि हाँ उनके पास टीचर तो था लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। अब यहाँ पे रेगुलर का क्या मतलब है, यहाँ पे रेगुलर का मतलब है मैकेनिकल टीचर, तो यहाँ पे लिखा भी है हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, तो वो रेगुलर टीचर नहीं था, एक इंसान था। तो माची वॉज शॉक्ड, एक इंसान, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो टॉमी कहता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो वो बताता है कि वो जो टीचर होता था वो बच्चों को होमवर्क देता था, उनको पढ़ाता लिखाता था और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछता था। तो मार्जी क्या कहती है कि अ मैन इज इन स्मार्ट इनफ, तो वो बताती है कि लेकिन आदमी इंसान इतना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है।
तो टॉमी कहता है बिल्कुल हो सकता है, मेरे जो फादर है, मतलब टॉमी के जो फादर है, नोज एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर को पता है, मतलब जितना मैकेनिकल टीचर को पता है उतना तो मेरे फादर को भी पता है, तो बिल्कुल स्मार्ट हो सकते हैं। तो माजी क्या कहती है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, बेचा मतलब कि आई बेट, इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, आई बेचा। अब माजी वॉज एन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो क्या कहती है कि एक इतना स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए, ये तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, मैं नहीं चाहती है। तो टॉमी जो है हंसी के मारे चिल्ला पड़ा। क्या कहता है वो कि यू डोंट नो मच माची, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो वो क्या बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर घर पे ही रहते थे जैसे कि उनके मैकेनिकल टीचर थे, बल्कि क्या था, जो टीचर्स थे देयर वाज अ स्पेसिफिक बिल्डिंग जहाँ पे बच्चे और टीचर्स आया करते थे पढ़ाने के लिए। तो मार्जी पूछती है तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो टॉमी कहता है श्योर, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो मतलब सेम एज के थे तो वो सेम चीज़ पढ़ते थे। तो मार्जी क्या कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच पॉइंट गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो वो बताती है कि उसकी माँ ये कहती है कि हर टीचर का जो माइंड होता है वो एडजस्ट करना पड़ता है हर अलग अलग लड़के और लड़की के बीच में, जिससे कि हर जो बच्चा है उसको अलग तरीके से पढ़ाया जा सके। मतलब उनके टाइम में तो मैकेनिकल टीचर था, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ही एडजस्टेड इट टू अ 10 ईयर एवरेज लेवल, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया था। तो ये वही कह रही है कि मेरी माँ तो ये कहती है कि एडजस्ट कर देना चाहिए जो भी टीचर है, इससे क्या होगा, बच्चे को हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पढ़ पाएगा। तो टॉमी क्या कहता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब वो क्या कहता है कि अगर तुमको मतलब इतनी परेशानी है, तो तुमको नहीं पसंद है तो ये बुक मत पढ़ो। तो मार्जी क्या कहती है, आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। तो मार्जी कहती है मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक नहीं पसंद है, और उसको भी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना वो चाहती थी, ठीक। तो नाउ दे weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school। तो उनकी बातें कंप्लीट भी नहीं हुई थी तब तक मार्जी की मॉम चिल्लाई कि मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा, कहा नॉट येट मामा, अभी नहीं, नॉट येट मतलब अभी नहीं। मिसेस जोन्स चिल्लाई नाउ एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो वो कहती है अभी, और शायद टॉमी का भी समय हो गया, मतलब कि उसको भी अपने मैकेनिकल टीचर के पास जाना होगा पढ़ने के लिए। तो मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी ने टॉमी से कहा क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये बुक मैं भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो भी क्यूरियस थी इस बुक को पढ़ने के लिए। अब टॉमी ने क्या कहा, मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली मतलब कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और इंथुजियाज लाइक केयरलेसली। तो उसने बोला मे बी, अब क्योंकि उसके पास बुक आ गई थी एंड अब वो थोड़ा सा सुपीरियर फील करने लगा था। सो ही नाउ वॉक द वे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm। ठीक। Margie went into the schoolroom. It was next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. तो मार्जी क्या थी, अपने स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम एक स्पेसिफिक रूम था जहाँ पे मैकेनिकल टीचर होता था, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, ठीक है, और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे और संडे को छोड़ करके वो मैकेनिकल टीचर खुद ब खुद ऑन हो जाता था एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक। बिकॉज हम मदर सेट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो रोज़ सेम टाइम पे क्योंकि वो ऑन हो जाता था, और उसकी मदर कहती थी ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बच्चियाँ जो होती हैं वो सेम टाइम पे रोज़ रोज़ पढ़ें रेगुलर आवर्स पे तो वो अच्छा पढ़ती हैं, ठीक है। Now the screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो वो क्या उसमें फ्लैश हुआ कि आज का जो उनका अरिथमेटिक लेसन था वो था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये भी कहता है वो साथ में कि जो कल का होमवर्क था उसको इंसर्ट कीजिए स्लॉट में, ठीक है। नाउ मार्जी डिड सो विद अ साई मतलब एक तरीके से शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, तो वो उस फ्रस्ट्रेशन के साथ उस स्लॉट में अपना होमवर्क डालती है। नाउ शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन अ ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। वो सोच रही है कैसे ओल्ड स्कूल होते थे जब उनके दादाजी के दादाजी भी बहुत छोटे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together at the end of the day। तो सारे बच्चे जो क्या थे, पूरे मोहल्ले से, नेबरहुड मोहल्ले से आते थे, हंसते खेलते, ठीक है, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे स्कूल रूम में, ठीक है, और फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद वो एक साथ घर भी जाते थे। दे लर्न दी सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। मतलब कि वो क्योंकि सेम चीज़ पढ़ते थे तो वो एक दूसरे का होमवर्क में मदद कर सकते थे और उसके रिलेटेड बातें कर सकते थे, ठीक है। एंड द टीचर्स वर पीपल, मतलब कि जो टीचर्स थे वो लोग थे, रियल पर्सन्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन
व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मतलब ये दिखा रहा है कि उस मैकेनिकल टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया. नाउ मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, अब वो मैकेनिकल टीचर पढ़ाता जा रहा है, उसको मतलब नहीं है सामने बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा है, क्योंकि मार्जी अपने थॉट्स में खोई हुई थी. फाइन, बट मैकेनिकल टीचर वो सब फ्लैश करता जा रहा था. मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. अब वो क्या सोच रही थी, वो जो किड्स थे कैसे उनको पुराने दिन कितने उनको पसंद होंगे. और शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब उनको कितना मज़ा आता होगा था. That was all for the chapter. We'll solve the exercises in the next video. Thank you.